Yeah, so as we discussed that we have to now complete the practice of this portfolio selections and management. Okay, so portfolio portfolio selection and management. So the first illustration is talking about the Bollywood Limited has invested 50,000 in a portfolio of share. It has invested 30% in the shares of A Limited. So you see illustration 4.1. So it has invested in different securities. Okay. So it is invested in different securities. So different securities. A Limited and B Limited. How much it has invested? See the weightage. Weightage is your 30%, 70%. Then we are having the return. Return from this company is your 15%. This company is your 12%. So what they are asking to calculate the expected return in percentage. So what is their question? They are asking to calculate expected return in percentage. So expected return in percentage. So how much we have got the W into R. So weightage is 0.3 and return is 0.1. This comes to 0.0450. Weightage is 0.7 and return is 0.12. This comes to your 0.0840. So how much we have got the 0.1290. How much we got the return in amount? You see, in amount. So we have invested 50,000. So 50,000 ka 30% is how much? 15,000. 70% is how much? 30,000. So our total amount investment is 50,000. How much we have got the return? How much we have got the return? So 15,000 into 15%. This comes to 2,250. 35,000 into 12%. This comes to 4,200. So we have got the return as your 6,450.
So how much will get the absolute return? So absolute return. So that is your 6450 divided by 50,000 into 100. This comes to 12.90%. So percentage return is going to be 0.1290, is going to be your 12.90%. Okay. Now we go and talk about the illustration 4.2. What they're telling, have a look at the question first. What they're asking actually. So they are asking is your, in a portfolio of a company of 2 lakh that have been invested in assets X which has an expected return of 8.5%. 2,80,000 in assets Y which has an expected return of 10.2%, and 3,20,000 in the assets Z which has expected return of 12%. What is the expected return from the portfolio? Fine. तो देखिए क्या होगा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूं, सिंपल है. सो वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो. और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हमें जो है एक बुक खरीदनी है. फाइन, बुक शॉप सारे ओपन हो गए हैं, तो हमें एक बुक परचेज करनी है किसकी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की. इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो रहा है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑथर कौन है? ऑथर हैं आर.पी. रुस्तगी. फाइन. जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बुक है वो कहाँ यूज होती है? प्रोग्राम में. फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की कहाँ यूज होगी? ऑनर्स में. अब आइए देखिए, हम 3 एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी हैव इन्वेस्टेड इन एक्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन वाई, वी हैव इन्वेस्टेड इन जेड. हाउ मच अमाउंट इज देयर? अमाउंट इज 2 lakhs, अमाउंट इज 2,80,000, अमाउंट इज 3,20,000. टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट वी हैव डन इज 8 lakhs. अब हम वेटेज निकाल लेंगे. 2 lakhs अपॉन 8 lakhs. देखिए वेटेज कैसे निकलेगा, एक्स का वेटेज कैसे निकलेगा, 2 lakhs अपॉन 8 lakhs. ठीक है, 2 lakhs अपॉन 8 lakhs, वेटेज कितना हो जाएगा? 0.25. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द वेटेज. 2,80,000 upon 8 lakhs, the weightage is 0.35. Fine. And 3,20,000 upon 8 lakhs, weightage is 0.4. So now how much return we have? We have return is 8.5%, 0.085. We have return is 10.2% from the Y is 0.102. We have the return is 12%, 0.120. So your average return will be weightage into the return. We have got 0.02125 weightage plus return. We have got 0.03570 weightage plus return. We have got 0.0485060. So we have got 0.10495. Okay. So these are the simple questions we have. See the next one. We have the next illustration. So next illustration is what they are telling. Illustration 4.3. Mr. A has a portfolio of 5 securities whose expected return and amount investment has been given. In first security you have invested 1,50,000, expected return is 12%. In second one you have invested 2,50,000, expected return is 9%. In third you have invested 3 lakh, your expected return is 15%. In fourth you have invested 1 lakh, your expected return is 18%. In fifth your investment is 2 lakh, your expected return is 14%. How much the expected return from the total portfolio we have got?
We have the security 1, we have the security 2, we have the security 3, 4 and 5. Your return is 12% is 0.12, your return is 9% 0.09, your return is 15% 0.15, your return is 18% 0.18, your return is 14% 0.14. Amount invested is 1,50,000, 2,50,000, 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 10 lakhs. Weightage is 0.15, 0.25, 0.30, 0.10, 0.20. अब हमें रिटर्न को क्या करना है, वेटेज से मल्टीप्लाई करना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिटर्न विद द वेटेज. सो इज वेटेज इनटू द रिटर्न. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर लेके. तो ये आपका कितना होगा? फाइंड. इट्स 0.180, इट्स 0.025. फाइंड. देन it's 0.025. So it's 0.025. Then we have is 0.450, we have is 0.180, we have is 0.80. So is 0.1315. So your average return is 13.15%. Okay. Now सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं. फाइन. टू सेव द टाइम, जो टिपिकल क्वेश्चन है उसकी प्रोसेस को आपको बताएंगे. फाइन. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है एक्चुअली. फाइन. इलस्ट्रेशन 4.4. फॉर्मेट लिमिटेड इज कंडक्टिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बाय investing 30% and 70% of its fund in them respectively. The expected return on risky investment is 15% and the risk-free investment is just 7%. The standard deviation of the risky investment is your 8%. Find out the expected return and the risk of the portfolio. Fine. तो देखिए हमारा एवरेज रिटर्न कितना है. फाइन. इसमें कह रहे हैं रिस्की पोर्टफोलियो में हमने कितना इन्वेस्ट किया? 30%. रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट किया? 70%. तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हुआ? 0.15 इंटू 30%, 0.07 इंटू 70%. सो वी हैव गॉट 0.045 और 0.049. फाइन. तो ये टोटल हमारे पास हो गया 9.4%. अब कह रहा है कि देखो जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है ना ऑफ द रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो रिस्क है ऑफ द रिस्की इन्वेस्टमेंट वो 8% है. तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा? तो वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% है. तो 30% इंटू 0.8, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो होगा वो कितना होगा? 2.4%. अब देखिए अगला काम हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है. अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4.5 में, उसमें कह रहा है कि देखो जी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास 12% है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास 20% है, और हमारे पास रिस्क 3% है, और हमारे पास रिस्क 7% है. इन्वेस्टर ने क्या किया है कि इन्वेस्ट 80% ऑफ द अवेलेबल फंड इन द प्रोजेक्ट एक्स, बाकी 20% वाई में लगाया. अब इनके बीच का कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी दिया हुआ है, वो +1 है. फाइंड आउट द रिस्क एंड द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ एक्स एंड वाई. व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द कोरिलेशन इज -1. अब ये आपको सॉल्व करके बताते हैं एक्चुअली. फाइन. ठीक है आप. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है. सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है, तो इलस्ट्रेशन जो हमारा अपना जो इलस्ट्रेशन है 4.5, तो इलस्ट्रेशन 4.5 में हमें जो सबसे पहले निकालना है वो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न. और एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमने किस किस में इन्वेस्ट किया, तो हमने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया. वी हैव द इन्वेस्टमेंट, वी हैव द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वी हैव द प्रोपोर्शन, वी हैव द वेटेज रिटर्न. सो वी आर हैविंग द इन्वेस्टमेंट, वी आर हैविंग द expected return, we are having the proportion,
we are having the weighted return. So we are having the x and then we are having the y. Your return is your 12%, your return is 20%, proportion is your 0.8, proportion is your 0.2. सो हमारा क्या हो गया कि ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये हमारा वेटेज है. सो हमने क्या करना, आर इंटू डब्ल्यू करना है. तो ये अपने पास हो गया 9.6%, ये हमारे पास हो गया 4%. सो वी हैव गॉट टोटल इज योर 13.6%. अब हमें इसका जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से हमें क्या मिलेगा, फाइंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. सो वी विल एबल टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी. ये क्या होगा, ये होगा रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर वेटेज 1 स्क्वायर प्लस योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्क्वायर वेटेज 2 स्क्वायर प्लस योर 2 इंटू वेटेज 1 वेटेज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 एंड द correlation coefficient between p, x and y. So what we have got, you see, so we have got is your स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कितना है, x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका, x स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 3% and y standard deviation is your 7%. So we have got is your 3 square into weightage 1 is your 0.8 square और फिर यहाँ पर है आपका 7 square और weightage है आपका 0.2 square. 2 into weightage is your 0.8 into 0.2 into your 3% into your 7% and correlation coefficient is your 1. Fine. So this comes to your 14.44%. So standard deviation portfolio comes to your 3.8. Okay, तो standard deviation portfolio comes to 3.8. अब ये कह रहा है कि अगर इनके बीच में जो correlation coefficient होता है, अगर वो -1 होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि had it been the correlation coefficient as your -1. ठीक है, तो कह रहा है कि आप क्या करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालें when the correlation coefficient between x and y is your -1. तो देखें क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर will be standard deviation of 1 square weightage of 1 square, standard deviation of 2 square weightage of 2 square, 2 into weightage 1 into weightage 2 into standard deviation 1 into standard deviation 2 into correlation coefficient of x and y. So we have got is your 0.3 square into 0.8 square. We have got is a 0.2 square into we have got is your standard deviation is your first is your 3 square into 0.8 square
we have got is your standard deviation is your 7 square and 0.2 square, and we have got is your 2 into our weightage is your 0.8 into weightage is your 0.2 into 3 into 7 into -1. So when we will solve this, we have got is your 5.76 plus 1.96 minus your 6.72. So we have got is your 1. Okay. So our standard deviation has come down from 3.8 to 1. Okay. Now you see. Now next we have is your 4.6. We have is your 4.6, and we have so many. What they have given is that we have given you the multiple options. Multiple options is like that कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है ना, उसमें देखिए क्या किया है. हमारा दो पोर्टफोलियो S1 एंड S2. S1 की हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, S2 की हमारी है 20%. हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 18%. कोएफिशिएंट जो कोरिलेशन है ना बिटवीन S1 एंड S2 इज 0.15. Now it was decided to consider only 5 portfolio of S1 and S2. फर्स्ट ऑप्शन में हमने सारा पैसा S1 में लगाया. सेकेंड ऑप्शन में हमने 50% पैसा S1 में लगाया, 50% हमने S2 में लगाया. थर्ड में 75% हमने S1 में लगाया, 25% हमने S2 में लगाया. फोर्थ में हमने 25% फंड हमने S1 में लगाया, 75% हमने S2 में लगाया. और यहाँ पे हमने ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2 लगाया. नाउ वी हैव इज योर we have to calculate your expected return from different portfolio. We have to calculate the risk factor from associated this portfolio. Now they are asking that which portfolio is best for him from the point of view of the risk, and which portfolio is best for him from the point of view of the return. So let us have a look of that. So we talk about the solutions. We are having the expected return of the portfolio is the weighted average of the return of the securities, and the weightage being the proportion of the security in the portfolio. The portfolio return can be calculated as follows. So we have portfolio 1, we have portfolio 2, 3, 4 and 5. We have, in first situation, we have invested 100% in S1, 0 in S2. Return from S1 is your 12%, 0.12. Return from S2 is your 20%, but we have invested 0. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे हमने 0.5 और 0.5 इन्वेस्ट किया, 12%, 20%. यहाँ पे हमने 0.75 इन्वेस्ट किया, 0.25 इन्वेस्ट किया, 12%, 20%. यहाँ पे हमने 0.25 इन्वेस्ट किया, 12%, 20%, 0.75. यहाँ पे हमने 0 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे पूरा 1 इन्वेस्ट किया. फाइन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमने वही करना है. हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा 2 है, तो हमें क्या करना है, वेटेज 1. ये जो है आपका, ये वेटेज 1 है, ये आपका रिटर्न 1 है, ये आपका वेटेज 2 है, ये आपका रिटर्न 2 है. आपको वेटेज 1 इंटू R1 करना है, प्लस आपको वेटेज 2 इंटू R2 करना है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, 12% होगा. आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, 16% होगा. आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% होगा. आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% होगा. आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% होगा. सो देयरफॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द डिफरेंट पोर्टफोलियो आर 12%, 16, 14 एंड ऑल. अब देखिए हमको कंबाइंड रिस्क निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन. उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर इंटू वेटेज 1 स्क्वायर. वी हैव द
standard deviation 2 square into the weightage 2 square into 2 into weightage 1 into weightage 2, standard deviation 1, standard deviation 2, and your coefficient correlation 1 and 2. Now what we are going to do, you see, we have the different portfolio. We have the portfolio 1, 2, 3, 4 and 5. We have the S1 weightage 1 and your standard deviation has been given 10%. इसका 0, इसका standard deviation 18% है, and like that we have the correlation coefficient is 0.15. अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसको सॉल्व करना है. फाइन. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो पोर्टफोलियो का जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 10%. फाइन. यहाँ पे ये 10.9 आएगा. इस फॉर्मूले में आपको इसको पुट अप करना है, सॉल्व करना है, जैसे अभी सॉल्व करके दिखाया आपको. ये आपका 9.5% आएगा, ये 14% आएगा, ये 18% आएगा. फाइन. सो लाइक दिस द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑल द सिचुएशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं. From the point of the view of the return, the portfolio 500% of the fund invested in the security S2 is the best. This portfolio will earn him a return of 20%. However, the best portfolio from the point of view of the risk is one which has the least risk. The coefficient of variations is a standard deviation upon R is least for the portfolio third. तो उसमें क्या है, उसका रिस्क सबसे कम है. तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करें. अब इसी तरह से फिर आपके पास छोटा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4.7 जहाँ पे सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न है 15%, 20%. फाइन. स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 3%, यहाँ पे 5%. इनका रिलेशन है 0.158. अब इन्होंने फिर तीन कंडीशन किया कि इन्होंने 50% एक्स और वाई में लगाया, इसमें 30% एक्स में लगाया, 70% वाई में लगाया, इसमें 70% एक्स में लगाया, 30% वाई में लगाया. तो अब हमारा पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करेंगे. पोर्टफोलियो 1 50-51 में वही फिर आपको क्या करना है कि वेटेज 1 इंटू R1 और फिर करना है वेटेज 2 इंटू R2. आपको क्या करना है, ये वेटेज इंटू R1 वेटेज 2 इंटू R2 करना है. सॉल्व करेंगे 17.5%. 30:70 रेशियो में 18.5%, 70:30 रेशियो में 16.5% हो जाएगा. और इसी तरह से फिर हमने क्या करना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप देख चुके हैं. क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर वेटेज 1 स्क्वायर प्लस योर वेटेज 2 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू वेटेज 1 इंटू वेटेज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ योर एक्स एंड वाई. इसको जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट कंडीशन का आएगा वो आ रहा है आपका जो वेरिएंस है 14.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो है 3.808. वैसे सेकंड कंडीशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो है 4.254. वैसे थर्ड कंडीशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो है 3.420. ठीक है. अब यही चीज़ ऐसे ही आपका सेम टू सेम प्रैक्टिसेस आपका चल रहा है. एक्चुअली यू कैन हैव ए लुक. वी हैव जो इलस्ट्रेशन 4.48. इसमें आपके पास जो रिटर्न है वो 10% है, 20% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, 25% है. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ ए एंड बी इज 0.5. एन इन्वेस्टर इज टू डिसाइड अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ ए एंड बी इज 75%, 25%. ये दूसरा है 25% to 75%. ये आपका वेटेज 1 है, ये वेटेज 2 है. सेकंड केस में वेटेज 1 है, ये वेटेज 2 है. विच वन शुड बी एक्सेप्टेड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव द सॉल्यूशंस. फाइन. वी आर हैविंग द expected return of RAB, that is your return of A, weightage of A, return of B, weightage of B. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर, वेटेज ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर, वेटेज बी स्क्वायर, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेटेज बी एंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी. अब देखिए हमारा वेटेज कितना है, 75% एंड 25% है ए एंड बी का. तो हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो कितना है आपका, तो हमारा एवरेज रिटर्न हो गया आपका जो है वो है 10%, वेटेज है 0.75. यहाँ पे आपका रिटर्न है 12%, वेटेज है 0.25. इसको आपने सॉल्व किया, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.5% हो गया. फाइन.
जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 4.8 की। ठीक है, तो देखिए 4.8 में क्या है कि हमारे पास दो सिक्योरिटीज़ है, ए और बी, और इनका जो रिटर्न है ना वो 10% है और दूसरे का रिटर्न है 12%। इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो है 20% और दूसरे का है 25%। और इनका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो आपका कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है आपका, रिलेशन जो कोएफिशिएंट है ना वो है 0.5। अब देखिए इनका वेटेज कितना है, जो वेटेज है ना वो कितना है, तो वेटेज है केस 1 में कितना है आपका, केस 1 में जो ए का वेटेज है वो है 75%, जो बी का वेटेज है वो है 25%, और केस 2 में जस्ट रिवर्स है, 25% है एंड देन वी आर हैविंग 75%। तो देखिए हमें तो पता है ना एक्चुअली कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर ए वेटेज ए प्लस आर बी वेटेज बी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और बी है वो क्या होगा, तो वो होगा √100 स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर वेटेज ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर वेटेज बी स्क्वायर, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, weightage of A, weightage of B, and then correlation coefficient of A and B. So हम जो फर्स्ट ऑप्शन में बात करेंगे 75% प्लस 25% पोर्टफोलियो ऑफ A and B. So what will happen in this situation? तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो हमारा जो आर ए बी है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो रिटर्न है वो 10% है इंटू 0.75, और हमारा जो रिटर्न है वो 12% है इंटू 0.25। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.075 प्लस योर, so it is going to be 0.075 plus your 0.030, तो आपका एवरेज रिटर्न हो जाएगा 10.5%। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और बी क्या होगा, व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी। So let us have a look. So standard deviation of A and B will be your standard deviation of A square into weightage of A square plus standard deviation of B square and weightage of B square plus 2 into standard deviation of A into standard deviation of B into weightage of A into weightage of B into your correlation coefficient of A and B. So it is going to be your is your 20 square into
0.75 square, 25 square into 0.25 square, 2 into 20 into 25 into 0.75 into 0.25 into correlation coefficient is 0.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपका निकल कर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी इज गोइंग टू बी योर 0.1892 and it comes to your 18.92%। फाइन। अब हम आते हैं दूसरे केस के लिए। केस 2 हमारे पास क्या है? व्हाट इज वी आर हैविंग द केस 2, वी आर हैविंग 25% प्लस योर 75% portfolio of your A and your B। तो यहाँ पर जो हमारे पास RAB होगा that is your 10% into 0.25 plus 0.12 into 0.75, this comes to your 0.25 plus your 0.090, this comes to 0.1150, is your 11.5%। So standard deviation of A and B will be your root under your 20 square into 0.25 square, your 25 square into 0.75 square into 2 into 20 into 25 into 0.25 into 0.75 into 0.5। So this comes to your 0.2169 is 21.69%। अब देखिए इस पोर्टफोलियो में क्या होगा, ये दो तरह का पोर्टफोलियो हमने बनाया। तो इन द portfolios of A and B, we are having 25%, we are having 75%, दूसरा हमारे पास है 75%, we are having 25%। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये देखिए ये जो वेरिएशंस है ना उसका एक एवरेज होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25% का, ये आपके पास क्या होगा, फाइन। तो ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन RAB। आपका फर्स्ट केस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 18.92 है, 18.92 है, डिवाइडेड बाय आपका एवरेज रिटर्न जो है वो 10.5 है। सो दिस कम्स टू 1.802। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25, 75 का क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय RA and B, this comes to 21.69 divided by your 11.5 and this is your 1.886। so what we will do basically, so as the coefficient of variation of 25% plus 75% is higher, it means that this portfolio is
रिस्कियर। ओके, तो ये जो पोर्टफोलियो है वो आपका क्या है, रिस्कियर है, जिसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। फाइन, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपका क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी हमारे पास 3 है, सिक्योरिटी 1 है, 2 है, 3 है, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसका रिस्क है। इफ ए पोर्टफोलियो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, would you any security dominate other? If yes, why? Find out of the coefficient of variation of security 1 and security 3rd। तो देखिए इसमें जैसे हमारे पास जो कह रहा है वो समझिए, छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है तो आपको इसमें से ही समझा दे। इसमें देखिए कह रहा है कि हमारे पास 3 सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3। और फिर मैंने कहा कि देखिए ये जो हमारी बुक है उसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं R.P. रुस्तगी। इनका जो पब्लिकेशन है वो है, ये पब्लिकेशन है इनका सुल्तान चांद। तो इनका जो पब्लिकेशन है वो है सुल्तान चांद, ठीक है। और इसी की एक बुक आती है टैक्समैन पब्लिकेशन में, उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है। ये जो बुक है ये बीकॉम प्रोग्राम में चलती है, ऑनर्स में चलती है। आप परचेस कर लेंगे, हैंड टू हैंड आपके सामने इस वीडियो के साथ बुक रहेगा ना, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, 10 है, 10 है, मतलब इनकी रिटर्न सेम है सेकेंड और थर्ड की। अच्छा, इनका रिस्क ज़्यादा है, 20% है, इनका रिस्क 12 है, इसका 15 है। कह रहे इफ ए पोर्टफोलियो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, would any security dominate other? If is why? Find out the coefficient of variation of the security 1 and 3rd। तो देखिए कह रहा है कि आउट ऑफ दीज सिक्योरिटीज द सिक्योरिटी 2 would dominate over सिक्योरिटी 3rd, क्योंकि उसका जो रिटर्न है दोनों का सेम है, ठीक है, 10% है, बट द सिक्योरिटी 2 हैज लोअर रिस्क, standard deviation of 12% as compared to 15% of the security 3rd, so security 2 would dominate over security 3rd। Now what did they have told us to calculate? Coefficient of variation का security formula क्या होता है, standard deviation of an average are 0.2 upon 0.18 is your 1.11 और इसका है 1.5। चलिए फिर वैसे ही हमारा अगला एक इलस्ट्रेशन है। फाइन, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, ठीक है जी। क्या है कि 2 सिक्योरिटी है और इसकी जो हमने वेटेज दी है वो 40% है और 60% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 15% है, स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, 20 है। कैन आई फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इनका कोरिलेशन जो बिटवीन सिक्योरिटीज है ना वो +1 एंड -1 है। तो देखिए जी इनका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, √100 स्टैंडर्ड डिविएशन ए स्क्वायर वेटेज ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन बी स्क्वायर वेटेज बी स्क्वायर, 2 into standard deviation A, standard deviation B, weightage 1, weightage B and the correlation coefficient। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, 15% इसका वेटेज 0.4 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 0.6 स्क्वायर, 2 into 15 into 20 into 4 into 6, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने इसको निकाला। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है, 18% आ रहा है, और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है तो ये 6% आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट दीज आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन पोर्टफोलियो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स इज होल्डिंग ए पोर्टफोलियो विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 24%। He now inherit a portfolio which has the expected return and standard deviation of 14% and 18% respectively. The market value of the two portfolio in the ratio of 2:3. Find out the expected return and the standard deviation and combine the portfolio of Mr. X given the correlation coefficient is 0.6। तो देखिए इनका जो वेटेज है वो 2:3 है। इट मीन्स जो वेटेज है वो है 40% एंड 60%। हमारा एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, 0.4 into the return 1, that is your 20%, 0.6 into 0.4, this comes to your 16.4%। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, फाइन, स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू वेटेज 1 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर, वेटेज 2 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर,
2 into weightage 1, weightage 2, standard deviation 1, standard 2, and then coefficient. 0.4 square, 24 square, 0.6 square, 18 square, 2 into 0.4 into 6 into 24 into 8. फाइन, इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 18.25%. नाउ गो एंड चेक दिस इलस्ट्रेशन 4.12. यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास क्या थिन और फैट दो कंपनी है. इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, इसकी रिटर्न जो है 20% है. वेटेज हमने 50-50% आधे का रखा है. स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है, 15% है. इनका जो कोवेरियंस है वो 100 है. फाइन, कोवेरियंस, कॉव, ये है कॉव ऑफ योर टी एंड एफ. समझ गए ना, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं, कॉव है. कॉव से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलता है. तो देखिए जी हमारा एवरेज रिटर्न क्या होगा. फाइन, तो हमारा एवरेज रिटर्न होगा वेटेज 1 इंटू एवरेज रिटर्न 1, वेटेज 2 इंटू एवरेज रिटर्न 2. तो ये हमारा हो जाएगा 17.5% हमारी एवरेज रिटर्न हो जाएगा. फाइन, एंड देन व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होगा वेटेज 1 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, वेटेज 2 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ टी एन एफ. इसको जब आप सॉल्व करेंगे फाइन, तो ये आपका जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो वेरिएंसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट अंडर वेरिएंस होता है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होगा 11.46% हो जाएगा. अब कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉब ऑफ टी एन एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. दिया हुआ है आपका. फाइन, कॉब कितना आपका 100 है और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो इसका 10 है और इसका क्या है 15 है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये 0.667 है. तो ऐसे ही देखिए रिपीट पैटर्न आपके पास आ रहा है. व्हाट यू आर गेटिंग द रिपीट पैटर्न. फाइन, फिर इलस्ट्रेशन देखिए 4.13 में क्या हो रहा है. दो हमारी सिक्योरिटी है, इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% है, इसका 16 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4% है, इसका 7% है. इफ ए पोर्टफोलियो ऑफ 30% and 70% is formed, find out the expected return, minimum risk and the maximum risk. देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 0.13 इंटू 0.3, 0.16 इंटू 0.7, 15.1%. What about the standard deviation, weightage 1 square into standard deviation p, weightage q into standard deviation q, 2 into weightage p, weightage q, standard deviation p थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन p भी है इसमें. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन q भी है. फाइन, स्टैंडर्ड डेविएशन q भी है इसमें. फाइन, और ये आपका कोरिलेशन को ये मिसप्रिंट हो रहा है. अब आप इसमें कह रहा पोर्टफोलियो का मिनिमम जो रिस्क है वो क्या है, अगर इनका रिलेशन -1 है तो हम डिटेल्स पुटअप करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 3.7 आ गया. और अगर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है तो हमारा जो इस केस में जो आपका जो है वो जो आएगा वो 6.1 आ जाएगा. ठीक है, अब चलिए आपको कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं. सो हम लोग 4.14 को सॉल्व करेंगे. फाइन, देखिए 4.14 में क्या कह रहा है एक्चुअली, लुक ऑफ इट. तो 4.14 में क्या कह रहा है एक्चुअली, देखिए 4.14 कह रहा है जो रिस्क फ्री रिटर्न है. फाइन, रिस्क फ्री जो रिटर्न है वो कितना है, वो है 10%. व्हाट अबाउट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बीएससी इंडेक्स वो कितना है, वो 18% है. और जो रिस्क मेजरमेंट है मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बीएससी जो इंडेक्स है वो आपका 5% है. कह रहा है हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन इफिशिएंट पोर्टफोलियो टू प्रोड्यूस. तो हमें क्या करना है, इफिशिएंट पोर्टफोलियो टू प्रोड्यूस 16% of your expected return. Okay, now let us have a look.
तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वो जो हमारी जो कैपिम वाली जो थ्योरी है ना, वो अब यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, फाइन देयर विल बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज कॉल्ड IRF is equal to 10%. What about we are having is your expected return on market. The expected return is your RM is your 18%. Then we are having risk of the market, that is standard deviation of M, that comes to 5%. Then we are having required rate of return, that is your standard deviation of portfolio is your 16%. So how much we are having the weight of the market is your W. Then we are having is your weight of risk free assets is your 1 minus your W. तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, ये 0.16 हो जाए। तो ये क्या होगी, देखिए समझिए, ये हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.16 होगी और हमारा जो रिटर्न फ्रॉम मार्केट है वो है 0.18 और इसका जो वेटेज है वो है W, और जो हमारा इंटरेस्ट फ्री है वो है 0.1 और इसका वेटेज है 1 माइनस W वेटेज है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 0.18 W 0.10 into 1 will come is your 0.10 minus your 0.1 W. Sorry, this comes to your 0.08 W और ये आपका इधर आ जाएगा 0.16 माइनस 0.10. So this comes to your 0.06 is equal to 0.08 W. So weightage is going to be your 0.06 divided by 0.08, 0.75. Now you see, so 0.75. Now, so a portfolio of 75% of risky and 25% of risk free securities will give expected return of 16%. ठीक है। अब कह रहा है कि देखो जी इस पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, हाउ मच इज द रिस्क ऑफ दिस पोर्टफोलियो, हाउ मच इज द रिस्क ऑफ दिस पोर्टफोलियो, risk of the portfolio would be standard deviation of P, standard deviation of M into weightage of M, 0.05 into
weightage is 0.75, 0.375. This comes to your 3.75%. तो अब ऐसे ही देखिए, अगली क्वेश्चंस है आपके पास, फाइन, वो है 4.15, 4.15 है, यहाँ पे सिक्योरिटी ए है, यहाँ पे सिक्योरिटी बी है, इनका जो वेटेड है वो है 50% है, 50% है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 20% है, 12% है, स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 24% है, 16% है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज 20% और 18%। देखिए हमसे कोरिलेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट कोरिलेशन between the returns if the standard deviation is 20% और 18%। तो देखिए वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो पोर्टफोलियो है वो हमें पता है, वेटेज ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेटेज ऑफ बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी स्क्वायर, 2 इंटू वेटेज ए, वेटेज बी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ क्या होगा देखें आप, यहाँ क्या होगा, फाइन, तो यहाँ पर आपके पास है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो 20 स्क्वायर है, 0.5 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 into 24 into 16 and then correlation coefficient between A and B। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 400 is equal to 144 plus your 64 plus your 192। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को R भी बोला जाता है। अब इसका R जब सॉल्व करेंगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1। और उसी तरीके से कह रहा है कि देखो जी अगर हमारा क्या हो कि if the standard deviation of portfolio is 18%, so if this happens then your 18 square is 0.5 square, 24 square, 0.5 square, 16 square, 2 into 0.5 into 0.5 into 24 into 16 into correlation coefficient। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 324 equal to 144 plus 64 plus 192 into R। तो ये जो R आप सॉल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0.604। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया 4.15 का। तो ऐसे ही देखिए अब जो है आपकी जो अब ये धीरे धीरे अब इसमें जो है कैपिंग के क्वेश्चन आपके पास सामने लगेंगे, समझ रहे हैं। तो आप देखें आपके पास 4.16 में क्या कह रहा है, व्हाट दे आर टेलिंग इन द 4.16 कह रहे कि देखिए एक हमारे पास क्या है ना सिक्योरिटी है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 2.8% है, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना सिक्योरिटी एंड मार्केट की
वो है 0.8 और जो मार्केट डिविएशन है ना वो है 2.3%। जो रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरेस्ट रिस्क फ्री होता है, ये जी 12% है। और जो रिटर्न फ्रॉम मार्केट है ना वो 18% है। तो कह रहे देखो भाई ऐसे पोर्टफोलियो का क्या होगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न। तो देखिए कैपेम के फॉर्मूले में क्या होता है, बीटा लगता है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इंटू एस एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो आपका कितना है, वो है 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो है 2.8, मार्केट है 2.3, दिस कम्स टू 0.974। तो रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो क्या होगा, इंटरेस्ट आर एम माइनस आई आर एफ इंटू द बीटा। तो ये होगा 0.12, 0.18, 0.12 इंटू 0.974। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो 17.84%। तो आपको कैपेम का तो फॉर्मूला बताया ही है ना। कैपेम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेम का फॉर्मूला देखिए, कैपेम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैपेम जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होती है फ्रॉम द सिक्योरिटी वो होता है इंटरेस्ट आर एम माइनस इंटरेस्ट आर एफ इंटू द बीटा होता है। ये होता है कैपिंग का फॉर्मूला। तो मैंने बताया था कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। तो ये तो इंटरेस्ट रिस्क फ्री है, ये रिटर्न फ्रॉम द मार्केट है, ये इंटरेस्ट रिस्क फ्री है और ये रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर जितना बड़ा होगा आपका रिटर्न क्या होगा उतना बड़ा होगा। फाइन। तो देखिए 4.17 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल कह रहा है कि देखो जी जो IRF है ना वो 4% है और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है ना, मार्केट जो रिस्क प्रीमियम है वो 8.6%, मतलब ये है रिस्क प्रीमियम। ठीक है, RM माइनस IRF। और इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का जो बीटा है ना वो 1.3, मतलब इस कंपनी का। तो हमें क्या करना है, कैपेम के हिसाब से क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो भैया आपको बताया कि आपका इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट RF प्लस RM माइनस इंटरेस्ट RF इंटू बीटा। तो ये आपका 4%, 8.6% इंटू बीटा कितना है 1.3, सो दिस कम्स टू 15.18%। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेक्टेड। तो बस इसी फॉर्मूला पे आपका जो है ये लगेगा एक्चुअली। फाइन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4.18 क्या कह रहा है एक्चुअली। फाइन, जो बुक है वो ये वाली बुक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, एक बार देख लें आप रुस्तगी की। फाइन, और इसका जो पब्लिकेशन है वो है सुल्तान चांद पब्लिकेशन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आप रुस्तगी, CBCS सिस्टम के लिए ये एलिजिबल है। फाइन, और ये इसकी पब्लिकेशन कौन सी है, सुल्तान चांद एंड सन्स की। ठीक है, ऑनलाइन मंगवा लें या अब बुक की शॉप खुल गई है तो आप बुक ले लें एक्चुअली। फाइन, आइए देखते हैं 4.1 में क्या कह रहा है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो आर 12% एंड 19%। तो दिस इज व्हाट यू हैव द रिस्क, यू हैव द रिटर्न। So this is the standard deviation of the market, this is the return of the market.
द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10%, तो ये 10% क्या है, इंटरेस्ट रिस्क फ्री, इसको हम लोग RF बोलते हैं बहुत बार। अब कह रहे हैं देखो जी, पोर्टफोलियो ए है, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% है और उसका रिस्क 30% है, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं कि टू बी इफिशिएंट पोर्टफोलियो दिस मस्ट बी लाई ऑन द CML कैपिटल मार्केट लाइन इन द लाइट ऑफ द रिस्क लेवल गिवन फॉर दिस पोर्टफोलियोज। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट रिस्क फ्री RM माइनस इंटरेस्ट रिस्क फ्री, फाइन। और हम यहाँ पे बीटा ले सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एस अपने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो ए के लिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन फॉर द पोर्टफोलियो ए। तो हमारी जो इंटरेस्ट रिस्क फ्री है वो 10% है, मार्केट 19 है, माइनस 10 है, 30/12% है, तो ये हमारी जो है 32.5% है। पोर्टफोलियो बी की जो हमारी है वो है इंटरेस्ट रिस्क फ्री 10% है, मार्केट 19 है, 10 है, और इसका जो आपका रिस्क है वो है 16%, मार्केट का है 12%, तो 22% हो गया। और पोर्टफोलियो सी क्या हुआ, इसका एक्सपेक्टेड 17.5% है। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कैलकुलेट हुआ है वो पोर्टफोलियो ए का 13.5% हुआ है और इसका 22% हुआ है और इसका क्या है 17.5% है, फाइन। तो जब हम CML को कह रहे हैं कि कंपेयर करेंगे, सो कंपैरिजन ऑफ द CML बेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो gives an idea about the efficiency of the portfolio. So portfolio B is an efficient portfolio as its expected return 22% is equal to CML best return. However, the other portfolio A and C are not efficient portfolio and is below the CML. So as the expected return of the portfolio A and C are more than the actual return, fine. तो हमारी जो देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो है वो क्या हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब हमारी है 32%, बट हम कमा रहे हैं 24%, कम कमा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17.5%, हम ओनली 17% अर्न कर रहे हैं। सो दीज आर ओवर प्राइस पोर्टफोलियो। हाउएवर पोर्टफोलियो बी हैज एक्चुअल रिटर्न इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड इट इज करेक्टली प्राइस्ड, ठीक है। तो अब देखिए ये सब कैपिम वाला ही क्वेश्चन आपके पास चलेगा, कैपिटल मार्केट लाइन वाला ही क्वेश्चन चलेगा, फाइन। तो इसमें कह रहे हैं जो रिस्कलेस सिक्योरिटीज आर ऑफरिंग रिटर्न ऑफ 8%, while the return of the market portfolio is 15%, the standard deviation of the market portfolio is 2%, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आपका जो रिस्क फ्री है ना, जो IRF है